Hello everyone, I am Piyush. I am here to discuss with you the paper 1 of the UPSC Civil Services Examination 2025 Mains PSIR optional paper. As discussed with you earlier, I told you that we'll be having a separate discussion for the paper 1, and I thought I'll make a very quick video for you so as to give you insights into the trends this year. What I have done for the sake of your convenience is I have divided the entire paper into three categories. The first category is whereby a question has been asked, which is the same question, mostly or largely the same question has been asked in the previous years also, and my sample space is 2013 to 2024. The second category is whereby a similar theme has been asked in the same time period of 2013 to 2024. And the third is the current affairs based theme, which is primarily for the Indian government and politics part, not for the theory and thought part. So on these three parameters, I have divided all the questions for you. As you can see in this particular PDF, on this end side we have the 2025 question. Here we have the type, similar theme, and here you have the same question. I have mentioned the year also in which it was asked. The first question says explain the philosophical approach. Similar theme with respect to the normative approach has been asked earlier, and the topic exactly is political theory, meaning and approaches. So the first topic in the political theory and the meaning and the approaches of the political theory, those of you who know the syllabus. So it's the very first topic. From there the first question has come, and I have categorized it under the similar theme. Okay, because it's normative and philosophical are on the same line, so you can even categorize it direct also, it hardly matters. Then you have write a note, sorry, then you have just give me a minute. Okay. Write a note on the relation between equality and liberty from a multicultural perspective. Now, earlier, how is liberty a precondition for equality has already been asked. The multicultural perspective has been added this time. So, I have placed it under the similar theme. Based on such categorization, these are the 11 themes, first of all, which have been asked. Okay. This year, questions have come from these uh, 11 themes. Very quickly, I'll do analysis for you. From the meaning and approach part, there have been two questions. Equality and liberty, as we discussed, there has been one question. Power and legitimacy, there has been one question. One question. Ideologies, there has been a question on fascism. There has been a question on feminism. The feminism question is quite a easy one, earlier also asked. Fascism question, whereby you have to distinguish between the Italian and the German forms of fascism, that is also on largely the same lines, which oh sorry, it is largely on the lines on which you study fascism, so it's not, I would say, a difficult question. Then you have themes of democracy, theories of state, justice. Then Gandhi, you can place it under Indian political thought also. You can place it under ideologies also. Hardly matters. One and the same thing. Then you have Locke from Western political thought. Then you have Hannah Arendt from Western political thought. And there is a miscellaneous question whereby Popper's discussion has to be done, and you can consider it to be a part of Plato and Karl Marx, although separately Popper is not a part of our discussion. However, a very similar question on what has been asked this year has been asked earlier also, so we can take cues from there. Doable question. Before I move forward, if you can see, there have been two questions from Western political thought, only one question from Indian political thought, and that also, if you put it in ideologies, you can say Indian political thought was largely absent. Then from the equality, liberty, power, legitimacy, ideologies, democracy, theory of state, justice, you find a single question. And then meaning and approaches, there are two questions. So this becomes important for us. Earlier also UPSC has been asking questions from the meaning and approach part. This year also they have asked. Okay. However, IPT is largely absent. Okay. If you consider the Gandhi to be a part of ideologies, then Indian political thought was largely absent from the paper. Now, as we move forward, you have the next was the just give me a minute. Let me make things a little bit more easier. Otherwise, keep creating problems for us. Uh, let's put it in read mode. Okay. Now I think it. Okay. Then you have the Macpherson's view on power.
Macpherson's ideas on democracy has been asked earlier. From there, you can derive the same. So I would say this was not a difficult question, a generic question. The difference between Italian and German brands of fascism, similar theme. Explain briefly the elite theory of democracy. It's a direct question. Already it has been asked. 2013, explain briefly the elite theory of democracy. Elitist theory of democracy denies the possibility of democracy as the rule of people. Elucidate in 2018. Direct question. Okay. Then Marxist approach and liberal approach towards the state. Similar themes have been asked, whereby separately neoliberalism or neoliberal theory of state and Marxist theory of state has been asked. So I'll say on the same lines. Karl Popper presents a defense of the open society against its enemies. Now, as such, Karl Popper is not a part of our syllabus, but another question has come whereby it was asked that Plato was an enemy of open society. This is a statement given by Popper in addition to Hegel and Karl Marx. So, from there, we know what is the open society, and I think we can attempt this question. Okay, so I would not say that this is on the difficult side again. You can attempt it. Yes, a similar question of open and closed societies have been asked in paper 2 also, which we discussed yesterday. वहां पर भी एक open और closed society का question था. उसके बाद रॉल्स का क्वेश्चन आया है. वैसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, कुछ नया नहीं है. बिहेवियरल एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है. अगेन दिस सेम क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स. देन द क्वेश्चन ऑन गांधी which has come. State does the greatest harm to mankind by destroying individuality, which lies at the root of all progress. So Gandhi's critical views on state are expected. Everybody knows that Gandhi is a moral anarchist. We know Gandhi's views on state. You have to relate it to Swaraj and then you have to write it. Okay. So same question has not been asked, but yes, Gandhi's views on state and Swaraj has been asked. From there, you could have easily attempted this question also. Then personal is political. A direct question has been asked in 2013. So I've placed it under the direct category. And finally, we have the Locke's question, Hannah Arendt's question. Hannah Arendt's question directly, it has been asked in 2019. Locke's can be very easily done from the PYQ which have been asked on Locke. And finally, we have a question on legitimacy. Again, a very similar kind of a question has been asked earlier also. So again, I have reached till 4C. If I talk about all these themes, it was an easy paper. It was not at all a tough paper. It was an easy paper in the sense that all these themes, they are covered. They are covered. I'm not saying that, okay, you know, everybody is going to touch upon them, but yes, I don't see a theme which is on the difficult side or which is a side which may not have been asked in the previous years. ऐसा कुछ भी नहीं है. आसान चीजें पूछी गई हैं. जितने क्वेश्चन आए हैं मिलते जुलते क्वेश्चन पहले आ चुके हैं. हाँ, कुछ सालों में क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आते थे. तो जेएस मिल के ऊपर टफ सवाल भी आया है, आसान भी आया है. उस तरीके से लॉक के ऊपर जो पहले आया है वैसा ही अभी दोबारा आया. हना अरेंड के ऊपर जो पहले पूछा है वैसा ही दोबारा पूछा है. पावर के ऊपर मैकफर्सन का व्यू डेमोक्रेसी में पढ़ा जाता है, मैकफर्सन का व्यू पावर में कई बार नहीं पढ़ा जाता, तो वहां से थोड़ा रिलेशन बनाने की जरूरत है. एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी बहुत इजी क्वेश्चंस है. दिस आर, आई वुड से, द क्वेश्चंस वर नॉट टफ. अब डिपेंड करता है आपने स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन कैसी की है, वहां पे मार्क्स का डिफरेंस हो जाएगा. बट अगेन टू रीइटरेट माय पॉइंट, ये वाला पार्ट टफर साइड पर नहीं था. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट विच इज द आईजीपी पार्ट. आईजीपी पार्ट के लिए ये 12 थीम्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें से कुछ ऐसी थीम्स हैं जो करंट अफेयर्स रिलेटेड है. तो बेनिफिट भी है, नुकसान भी है. बेनिफिट ये है कि GS2 में हम वैसे भी उनको पढ़ रहे थे और PSR में भी आ गया. तो अगर आपका पॉलिटिकल थ्योरी स्ट्रांग नहीं था तो यू शुड हैव अटेम्प्टेड द एक्स्ट्रा क्वेश्चन फ्रॉम द आईजीपी. तो इन माय ओपिनियन यू शुड हैव डन दैट, बिकॉज आईजीपी GS2 में जिसने प्रिपेयर किए थे वो टॉपिक्स, उसके लिए आईजीपी के क्वेश्चंस वो इजीली अटेम्प्टेबल थे. आएंगे उस पर. कौन से क्वेश्चन है? एक JNK का करंट अफेयर से क्वेश्चन आया है. एक इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर जो भी इशू चल रहा था, लास्ट वीडियो में भी मैंने बात की थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया. एंड दिस वाज एक्सपेक्टेड लाइंस पर था, बिकॉज 2023 में जब
बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद जो भी ड्रामा हुआ था, उसके बाद सस्पेंशन ऑफ एमपीज हुआ था, एंड इट वाज अ ह्यूज ह्यूज मैटर। तो एक्सपेक्टेड था कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। बट हाँ, इसके कारण क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल आया, एनएचआरसी पे आया, स्टैट्यूटरी कमीशन से 2 सवाल आ गए। सिमिलरली फेडरलिज्म से भी हमारे पास 2 सवाल आ गए। इसके बाद एक करंट अफेयर का क्वेश्चन पार्लियामेंट्री कमिटीज के ऊपर आया। ये करंट अफेयर इमीडिएट नहीं है, बट पार्लियामेंट्री कमिटीज किस तरीके से जो बिल्स है वो पार्लियामेंट्री कमिटीज को नहीं भेजे जा रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वी आर सीइंग इज द स्क्रूटनी ऑन द बिल्स हैज रिड्यूस्ड, जिसके कारण से पार्लियामेंट का ओवरऑल कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव कम हो गया है। ये एक थीम है जो 5 6 7 साल से डिस्कशन में है। क्वेश्चन आज तक कभी पार्लियामेंट्री कमेटी का नहीं आया था, पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन जरूर आया है। इस बार यूपीएससी ने पीएसआईआर में पार्लियामेंट कमेटी का भी पूछ लिया क्वेश्चन। सो ऑन दैट फ्रंट आई वुड से थोड़ी सी करंट अफेयर की जिसको नॉलेज थी, अगेन जिसने जीएस2 में किया था उसके लिए बहुत आसान था। इसके बाद कास्ट सेंसस को लेकर करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल आ गया, डिलिमिटेशन को लेकर करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल आ गया। इफ यू सी हियर, already we have identified 5 questions from the current affairs which is on the higher side. इतना करंट अफेयर्स नहीं आता था जितना इस बार आ गया है। तो आईजीपी में हमें अच्छा करंट अफेयर्स देखने को मिला। अब वापस आते हैं आईजीपी के क्वेश्चंस पर। पेजेंट मूवमेंट्स का क्वेश्चन आया, ऐसी सिमिलर थीम पहले भी पूछी जा चुकी है। सिमिलर थीम का क्वेश्चन पहला। दलित पर्सपेक्टिव डायरेक्ट है, पहले बहुत बार पूछा गया है। लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम्स लेड टू सम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये क्वेश्चन लैंड रिफॉर्म का नहीं है, ये क्वेश्चन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन का है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों हुई थी, लास्ट ईयर पीटी में इसका सवाल आया था। उससे पहले वी ऑल नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड वी नो द एसोसिएटेड लीगल टसल। जब हम गोलकनाथ केस की बात करते हैं, केशवानंद भारती केस की बात करते हैं, तो ये सब की स्टार्टिंग फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुई थी और शंकरी प्रसाद केस से हुई थी। तो यहाँ पे ये वाली आपको पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। बट it is similar to this question which was asked in 2021, underline the significance of the first constitutional amendment। उसी कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा गया है, तो मैं सिमिलर थीम के अंदर ही इसको प्लेस किया है। हाँ, ये क्वेश्चन यूनिक है, करंट अफेयर बेस्ड है। की फैक्टर्स दैट हैव शेप्ड द इवॉल्विंग पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ जम्मू कश्मीर पोस्ट 2019। अब ऐसा क्वेश्चन, इसके लिए थोड़ा सा समझ नहीं आता कि कौन से टॉपिक से बनता है, तो या तो करंट अफेयर में डाल लीजिए इसको, we can place it under federalism also, but federalism it is very highly specific to JNK, so it becomes a little bit on the tougher side। okay, then NHRC के ऊपर क्वेश्चन आया है, पहले भी NHRC के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, so I'll say ऐसा कुछ टफ नहीं है। जिसने पिछले PYQs को देखा था, you could have attempted this। पार्लियामेंट्री कमिटीज का क्वेश्चन आया है, ये आपको बताया नया है, बट जीएस में किया था, you could have attempted। इसके बाद फाइनली एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। अगेन मैं इसको डालना चाहूँ तो इसको भी करंट अफेयर में डाल सकता हूँ, बिकॉज आफ्टर द फियास्को ऑफ द तमिलनाडु गवर्नर, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया जिसमें बिल्स को असेंट दे दी गई, उसके बाद प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ है 143 के अंदर, तो अब सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू गिव द एडवाइस। तो न्यूज में तो ये चल रहा था, अब वहां से भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये एक जनरल टॉपिक है, जीएस में भी पढ़ते हैं, पीएसआईआर के लिए भी है। तो अगर जुडिशरी आप पढ़ने जाते हो तो ये तो हम पढ़ते ही है, तो आई वुड नॉट से कि ये बहुत कुछ अलग से पूछ लिया गया है। हाँ, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा टिपिकल, कि आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई दिस। क्वेश्चन कह रहा है, द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स हैज नॉट इरोडेड द ट्रू स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, एंड देन द क्वेश्चन इज आस्किंग कि इस चीज को आप क्या करो, एग्जामिन करो। recent developments in Indian politics has not eroded the true spirit of federalism। पहले सवाल आता है कि हमारा जो फेडरलिज्म है वो यूनिटरी बायस है, उसकी वर्किंग जो है उसमें गवर्नर 356, इसके कारण क्या होता आया है कि जो फेडरल स्पिरिट है वो रहता नहीं है, हमेशा यूनिटरी की तरफ चले जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि रिसेंट की डेवलपमेंट्स ने दिखाया है कि ट्रू फेडरलिज्म मेंटेन्ड है। प्रॉब्लम ये है, आप कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस रीसेंट डेवलपमेंट्स को किस तरीके से इंटरप्रेट करे, कौन सी रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात की जा रही है, यहाँ पे कुछ क्लैरिटी नहीं।
और कह दिया गया है यू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट इलस्ट्रेशंस। तो यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो जाता है कि आप इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे, क्योंकि ओपन एंडेड छोड़ दिया गया है. सो व्हाट you'll have to do is you'll have to take events in the recent past and then you'll have to make an assessment of them. इवेंट में एक नेगेटिव इवेंट भी है जहां पे तमिलनाडु गवर्नर वाज नॉट गिविंग असेंट टू द बिल्स, ये भी फेडरलिज्म का इशू है. आर्टिकल 356 का इशू है, मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया, ये भी फेडरलिज्म का इशू है. At the same time, the regional political parties they have been able to retain power in many states. ये अच्छी बात है, इससे फेडरलिज्म और स्ट्रांग हो रहा है. तो हाउ हैव यू ओपनड अप दिस क्वेश्चन? ये बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है. इन माय ओपिनियन ऐसे क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है. I'll come up with the detailed answer to this at a later stage, but as of now, in my opinion, छोड़ देना चाहिए था. विमेन पार्टिसिपेशन को लेके क्या इम्पेडिमेंट्स हैं? आई हैव मैप्ड इट, देख लेना. 17 में आ चुका है, 14 में आ चुका है, सिमिलर लाइंस पर. कास्ट सेंसस का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है. अर्लियर व्हाट दे हैव बीन आस्किंग वाज हाउ कास्ट हैज मैनिफेस्टेड इन पॉलिटिक्स, कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स या पोलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट के ऊपर सवाल पूछे गए हैं. और द क्वेश्चंस हैव बीन अराउंड द caste calculations and the party system and the federal structure of India. तो ये वाला एस्पेक्ट कास्ट सेंसस वाला, ये करंट अफेयर्स बेस्ड है. एज सच आप इसमें थियोरेटिकल बेसिस नहीं ला पाएंगे ज्यादा, ठीक है. तो ये मैं कहूंगा कि कास्ट तो सेम थीम है, बट ये करंट अफेयर में रिलेट हो जाता है, तो यहाँ पर एडवांटेज भी है, और जिसको नहीं पता था उसके लिए प्रॉब्लम भी हो. जिसने GS2 में किया था उसके लिए बात. Then there is a debate on the procedure for appointment, analyze various aspects, absolutely current affairs specific. पहले इलेक्शन कमीशन के सवाल बहुत आए हैं, ये वाला थीम कभी नहीं, ये अभी पूछा है. पहले पूछा जाता है इलेक्शन कमीशन की वर्किंग को असेस करो, इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है. अब पूछा गया है डिबेट, स्पेसिफिक डिबेट, तो करंट अफेयर रिलेटेड थीम. देन यू हैव यहाँ पे एक टाइपो हो गया है, कंसल्टेशन नहीं, यहाँ डिलिमिटेशन है. The decision to conduct population census 27 has reopened the debate on delimitation in India. इसके वेरियस एस्पेक्ट्स डिस्कस करने हैं. अब इसका कहीं से रिलेशन आज सच नहीं बनाया जा सकता है सिलेबस में. फिर भी रिलेशन बनाना हो तो प्रिंसिपल्स ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें लेजिस्लेचर में हमारी हम डिलिमिटेशन पढ़ते हैं कि डिलिमिटेशन का एक्ट आएगा, फिर कमीशन आएगी, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन का काम होगा. वहां से रिलेट किया जा सकता है, बट इट इज एब्सोल्युटली अगर. इसके बाद नेहरूवियन एंड गांधीयन नेहरूवियन एक्सपीरियंस ऑफ प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसकी बात की गई है. यू हैव टू एग्जामिन कि उसका सिग्निफिकेंस क्या था अर्लियर फेज का. इससे पहले कंपैरिजन पूछा गया है नेहरूवियन एंड गांधीयन मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट का, जहां से यू कुड हैव इजीली टेकन सम क्यूज. आई एम नॉट सेइंग कि सेम क्वेश्चन पूछा है, थीम सिमिलर है, जहां पे पहले भी नेहरूज डेवलपमेंट फिलॉसफी एंड कंपैरिजन विद गांधी पूछा गया है. यहां पर एक स्टेप आगे पूछ लिया गया, नेहरूज डेवलपमेंट फिलॉसफी क्या थी और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है आने वाले समय में, ठीक है. तो ये क्योंकि प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टॉपिक से आता है, तो आपको थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे काम आ सकती है. आप इसको यहाँ पर फ्रीली यूज कीजिए. डोंट थिंक ऐसा PSR है तो इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं डाल सकते, डेफिनेटली डालिए. टॉपिक ही ऐसा है, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक, ठीक है. एंड फाइनली रीजनल पार्टीज, इनका क्या रोल है? ऐसा क्वेश्चन पहले भी बहुत बार पूछा गया है, सो आई विल नॉट प्लेस इट इन अ न्यू थीम. ये सिमिलर थीम ही. कमिंग बैक, ये थीम्स पूछी गई हैं, जिसमें से करंट अफेयर्स की थीम मैंने हाईलाइट कर दी है, जिससे फाइनली हमारा टेक अवे क्या है? हमारा फाइनल टेक अवे ये दो है. PYQ उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, स्पेशली फॉर पेपर 1 पार्ट A. सेकंड, करंट ट्रेंड्स ऑफ GS2 दे वर इंपॉर्टेंट दिस ईयर. इस तरीके से आपको IGP प्रिपेयर करते हुए यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन, जब GS2 कर रहे हो तो ये भी तैयार हो रहा है, जब IGP कर रहे हो तो ऑलरेडी GS2 तैयार हो रहा है, ठीक है. सेकेंडली, अगर सिर्फ IGP की बात करूं यहां पर, तो करंट अफेयर के अलावा जो क्वेश्चन आए हैं वहां पर आपको एक अच्छा मिक्स दिखता है सिमिलर थीम्स का, जो पहले पूछी गई हैं. उन्हीं में थोड़े से पैरामीटर्स को अलग से पूछ लिया गया है, तो थीम हम वहीं से उठाएंगे इसके लिए भी. बट व्हेन इट कम्स टू दिस पार्ट, ये तो पूरा का पूरा ही आपका PYQ से हो सकता है. तो द बेसिक आइडिया
of the entire discussion is you cannot neglect the PYQs and IGP के लिए करंट की थीम्स भी हमें करनी पड़ेंगी. Having said this, this was a brief discussion on paper 1. So what I'll do is I'll attach this particular PDF in the description box. आप जाकर उसको एक बार डाउनलोड भी कर लीजिए, उसको सेव करके रख लीजिए, उसको स्टडी करते रहिए एंड ट्राई टू टेक आउट मोर इंटेलिजेंस फ्रॉम दैट. ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा हायर प्रायोरिटी एरियाज को टच करें. फॉर एग्जाम्पल, बिफोर आई एंड दिस, एक और चीज तो मैं बताता हूँ. देखो, स्टैट्यूटरी कमीशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपका एक हाई प्रायोरिटी एरिया बन जाता है. फेडरलिज्म से क्वेश्चंस आते हैं, यहां से जो क्वेश्चन आता है ये बहुत इजी साइड पर आता है, तो यहाँ के क्वेश्चंस को हम फटाफट करके रख लेंगे. स्टैटिक लाइंस पर है, प्रिपेयर किया, नोट्स बनाए, कुछ आंसर्स लिखे, उसको वहीं पर रख लिया. आप इनके साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू ये वाला करंट अफेयर, कास्ट सेंसस वाला, डिलिमिटेशन वाला, ये वाला, यहाँ पर जस्ट टेक केयर ऑफ द फैक्ट कि कौन कौन सी चीज GS2 में यहाँ पर रिलेट हो रही है. तो जस्ट कीप एन आई ओपन इन द सेंस दैट यू आर एबल टू मेक अ कनेक्शन. जैसे हमने डिलिमिटेशन वहां पढ़ा, या हमने लेट्स से कास्ट सेंसस की बात पढ़ी, तो PSR में वो कहीं रिलेट हो सकती है. तो इस चीज का ध्यान रखिएगा. एक और इनसाइट जो अभी निकाल ली मैंने बात करते हुए, इस बार कोई क्वेश्चन मूवमेंट्स पर नहीं आया है. इस बार एज सच कोई क्वेश्चन प्रेशर ग्रुप पर नहीं आया है. इस बार कोई क्वेश्चन सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ लेजिस्लेटर्स पर नहीं आया है. वो वाले थीम्स मिसिंग है. ठीक है, बट अगेन डिस्पाइट कि वो मिसिंग है, आई वुड से ये वाले थीम्स जो हैं ये काफी रेपिटेटिव थीम्स है, और ऐसे थीम्स हैं जो जनरली स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल इन अटेम्प्टिंग. स्टूडेंट्स डिसकंफर्टेबल किस में होते हैं? पार्टी सिस्टम अटेम्प्ट करने में. प्रेशर ग्रुप भी अटेम्प्ट हो जाता है. कास्ट का क्वेश्चन कई बार अटेम्प्ट करना मुश्किल है. हाँ, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन कई बार अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाता है, या ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मुश्किल है, फेडरलिज्म. तो फेडरलिज्म को मैं थोड़ा सा टफर साइड पर रखता हूँ. जब भी क्वेश्चन आता है थोड़ा सा टफ साइड पर आता है. पार्टी सिस्टम का क्वेश्चन टफ साइड पर आता है. मूवमेंट्स का क्वेश्चन कई बार टफ आ जाता है, बट मूवमेंट्स का सवाल इस बार आया ही नहीं है. तो ये एनालिसिस हमारे लिए जरूरी है. आप इसको करते चलिएगा धीरे धीरे, एंड आई विल आल्सो keep on telling you more and more things. And having said this, this was it. I hope it added some value to your understanding, and I hope it helps you in channelizing your preparation in a better manner. And if you think the discussion helped you in any particular way, so please do like और सब्सक्राइब और कमेंट वाला कुछ कर देना, ताकि हमारी वीडियो ऊपर आ जाएगी एल्गोरिदम में, एंड इट विल रीच मोर पीपल, and it will keep us motivated to make more and more content. Having said this, thank you so much everyone, and all the very best. I'll see you very soon.